Hello 9th class students, this is my last video of the chapter 2nd, the Vedic period, and this is a revision video. Students, let's discuss about the education system of the Vedic period. Under the educations, Aryans sent their sons to the Gurukul. Okay, there was a place named Gurukul where the Aryans sent their sons for the education purposes. The young Aryans lived with the family of the Gurus during the entire period of his education. So during the education system, when the young Aryans got the education from the Gurus, they lived with the family of the Guru. Okay, education was imparted orally, so education system was orally there. There was no written education system was there. It was orally. Subjects taught there were literature, mathematics, astronomy, law, grammar, and etc. Means these types of subjects were taught by the Guru to the students. No fees was charged. The students did the routine work of the house like gathering fuel, tending cattle, cooked food, bed arms, etc. So during the education system, students did all the works of the गुरुज हाउस. ओके, जो भी मीन्स गुरुज हाउस के जो भी वर्क थे सभी के सभी वो करते थे वो. दैट इज गेटिंग द फ्यूल, टेंडिंग कैटल, कुक्ड फूड, बेड आर्म एक्सेट्रा. ऑन द कम्प्लीशन ऑफ देयर एजुकेशन दे पेड गुरु दक्षिणा. तो अपनी ही अकॉर्डिंगली, अपनी विश के अकॉर्डिंगली जो भी किसी की कितनी भी जितनी कैपेसिटी थी, ओके, उससे अकॉर्डिंगली वो अपने गुरु को एक गुरु दक्षिणा देते थे. तो दिस इज द एजुकेशन सिस्टम. नेक्स्ट इज द पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द अर्ली वैदिक पीरियड. First of all, there was the collection of families was called a gram, means village, and head of the gram was called the gramini. The collection of gram was called the vish, and head of the vish was called the vishpati. Collection of vish was called the jan, and head of the jan was called the rajan or king. The king was assisted by, means for the king help there were the ministers. First of all, Prohita is there. Prohita means priest who did all the religious performance for the king. Sarani, who was called the commander in chief, जो कि war commander था, सेनापति था. Sarani is there. Kingship was not hereditary. Hereditary means ये नहीं था कि अगर king की death हो गई है तो उसके बाद उसका son ही king बनेगा. No, in the early Vedic period that was not so there. The king was elected by the people. Okay, जो भी skilled था, जो भी brave person था, उसके बेसिस पर, स्किल के बेसिस पर जो किंग था, इट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल. इट वाज नॉट हेरिडिटरी. हिज ड्यूटी वाज टू प्रोटेक्ट द ट्राइब. तो किंग की जो ड्यूटी थी वो उसकी ड्यूटी थी अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना इन द डिफिकल्ट टाइम्स. नेक्स्ट इज देयर वर द 3 पॉपुलर काउंसिल्स विच हैव द किंग इन हिज वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज समिति, सभा एंड द विदता. समिति इट इज असेंबली ऑफ द पीपल. सभा जो काउंसिल थे एंड एल्डर्स मेंबर्स के. दीज बेटा 2 असेंबलीज वर वेरी मच इंपॉर्टेंट, सभा एंड समिति. समिति जो थी असेंबली ऑफ द पीपल, सभी कॉमन पीपल की असेंबली थी ये. सभा काउंसिल ऑफ द एल्डर्स, जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी असेंबली थी सभा. एंड दे वर द एडवाइजरी, जो दे परफॉर्म द एडवाइजरी एंड द जुडिशियल फंक्शंस. विदेता, दे परफॉर्म द इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल एंड द मिलिट्री फंक्शंस. And then in the early Vedic period, women were allowed to attend the Sabha and the Videta. Okay. Later Vedic period, kingship became hereditary. जो kingship थी, अब देखो later Vedic age आते आते ये था कि अगर king की death होगी तो उसका son ही king होगा, चाहे वो उसमें efficient है चाहे नहीं है. Okay. Kingship became hereditary. Assemblies lost their importance. अब जो assembly जो control करती थी king को, king की power के ऊपर कहीं ना कहीं control था सभा समिति को, they lost their importance. एंड विदेता कम्प्लीटली डिसअपियर्ड. विदेता जो थी टोटली डिसअपियर्ड हो गई यहाँ तक आते आते. वुमेन वर नॉट अलाउड टू अटेंड द असेंबलीज. वुमेन्स को असेंबली अटेंड करने की परमिशन नहीं थी. नाउ किंग्स रूल्ड ओवर लार्ज एरियाज कॉल्ड टेरिटरीज. अब किंग जो थे उनके अंदर लार्ज एरियाज थे एंड दीज एरियाज वर कॉल्ड द टेरिटरीज. एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल लाइक अधिराजा, सम्राट एंड सो ऑन. मीन जैसे जैसे किसी एरिया इंक्रीज होगा किसी किंग के अंडर तो वैसे वैसे ही उसकी जो पोजिशन है, जो टाइटल है, वो उसी अकॉर्डिंग उसको मिलता जाएगा. जैसे फर्स्ट अधिराजा, देन अगर उसके पास ओ लैंड हो गया सम्राट, देन ओ लैंड हो गया, देन महाराजा, महाराजा धीराज एंड दैट्स ऑल. देन न्यू ऑफिसर्स वर देयर. अब जो वहाँ पर लास्ट टाइम हमने बात की, देयर वर द 2 ऑफिसर्स, प्रोहिता एंड द सनानी. नाउ 2 न्यू ऑफिसर्स वर आल्सो देयर इन एडेड टू द जो हु असिस्टेड द किंग. दैट इज द भागदुहा, हु वाज अ टैक्स कलेक्टर, जिसका वर्क था टैक्सेस को कलेक्ट करना.
समग्राहित्री जो कि रॉयल ट्रेजर था, जो जिसके में जो खजाना वगैरह जो था, जो भी मनी वगैरह थी वो उसके अंडर कंट्रोल में थी, दैट इज अ समग्राहित्री. Then economy in the early Vedic period, it was a pastoral economy. Firstly, pastoral means जो गाय भैंस चराने का इनका मेन काम था. Agriculture was important and they used the wooden plowshares to for the agriculture purposes. जो भी इनके agriculture में जो भी वक्त था उस सभी के लिए वुडन प्लोशियर्स को यूज़ करते थे ये लोग उस टाइम पर इन द अर्ली वैदिक पीरियड. लेदर वर्कर्स वर देयर, स्मिथ्स वर देयर, पोटर्स वर देयर, कारपेंटर्स वर देयर. तो ये कुछ एक एक्स्ट्रा कुछ एक और ऑक्यूपेशंस थे इन द अर्ली वैदिक पीरियड. बार्टर सिस्टम वाज देयर. बार्टर सिस्टम इज एक्सचेंज ऑफ द गुड्स. ठीक है. काव वाज द प्रिंसिपल वेल्थ. तो ये था कि जिसके पास जितनी नंबर ऑफ काव ज़्यादा होंगी वो उतना ही वेल्थियर पर्सन है ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड. इन द लेटर वैदिक पीरियड सेटल्ड एग्रीकल्चर लेड टू इंक्रीज इन ट्रेड. अब एग्रीकल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और इससे क्या होगा, ट्रेड इंक्रीज हो गया है. कारपेंट्री, लेदर वर्क, पोट्री, एस्ट्रोलॉजी, ज्वेलरी मेकिंग, डाइंग एंड वाइन मेकिंग मीन्स कुछ एक और न्यू ऑक्यूपेशन थे जो लेटर वैदिक एज में एडअप हो गए हैं. आयरन प्लोशियर्स वर यूज्ड. अब पहले क्या था, वुडन, नाउ आयरन डिस्कवर हो चुका था, सो आयरन प्लोशियर्स वर यूज्ड. वुमेन वर एंगेज्ड इन डाइंग, निटिंग, वीविंग एंड स्पिनिंग. तो वुमेन जो थी वो और वर्क्स में इन्वॉल्व हो चुकी थी लेटर वैदिक एज में. Next is the religious life of the early Vedic age and the later Vedic period. First of all, in the early Vedic period, people worship the nature god like Prithvi, that is the Mother Earth, Indra, god of rain, Vayu, god of wind, Agni, that is the god of fire, Usha, goddess of dawn, Surya, sun god, Varuna, sky god, and then there was no idol worship. तो कोई भी ऐसा मूर्ति पूजा नहीं थी. Natural god was there. इन द लेटर वैदिक पीरियड न्यू गॉड्स मस्ट. अब न्यू गॉड्स आ गए हैं लाइक ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, रामा एंड कृष्णा. उसके बाद फीमेल गॉडेसेस थी दुर्गा, काली, लक्ष्मी, पार्वती एक्सेट्रा. एंड आइडल वर्शिप वाज प्रैक्टिस्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड एंड रिलीजियस रिचुअल्स बिकेम कॉम्प्लिकेटेड. अब जो रिलीजियस रिचुअल्स थे वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुके थे. जब कॉमन पीपल के लिए काफ़ी ज़्यादा जी एक्सपेंसिव थे इस टाइम तक. एंड द पोजीशन ऑफ ब्राह्मण्स बिकेम वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो इस टाइम तक जो ब्राह्मण की पोजीशन थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी. ब्राह्मण्स got more and more power, got more and more land under them. So students, this is all about our chapter. Our chapter second reason is completed. Okay, have a nice day. Goodbye all of you.